हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे लाहौर वालों के साथ और उन तमाम दोस्तों के साथ जो इस कैमरे के थ्रू हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। लिबर्टी मार्केट है लाहौर की बहुत ही मशहूर मार्केट। हम बहुत दफ़ा यहाँ आते हैं और बहुत बार आते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे हमें एक वॉकिंग स्पेस मिलता है, आराम से आप मूव कर सकते हैं। फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे बड़े और ख़ास तौर पर ओवरसीज़। जो भी लाहौर आता है इस मार्केट को ज़रूर विज़िट करता है। बहुत सारी दुकानें और ख़ास तौर पे शादी की शॉपिंग यहीं से ही लोग करना पसंद करते हैं। बहुत सारे और भी मार्केट्स हैं, लेकिन उन तमाम मार्केट्स जिनसे शादी की शॉपिंग की जा सकती है, आप किसी भी इवेंट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप इस मार्केट में ज़रूर आते हैं। आज भी आपके दोस्तों से हम बहुत सारी बातें करेंगे, उनके साथ हम फ़न भी करेंगे, उनकी ज़िंदगी की हम किस्से कहानियाँ भी सुनेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। जो फ़न हम करेंगे हमेशा की तरह, उसका सारे का सारा जो पोल है वहाँ पर खुलेगा प्रोग्राम के आखिर में। तो आप हमारे प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी जान सकें जो बातें हमने आपके दोस्तों से पूछी, बातें यानी कि जो फ़न हमने आपके दोस्तों से किया वो क्या था, सही था, नहीं था। तो जनाब अभी बढ़ते हैं और आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं। आइए मेरे साथ। Beta, what's your name? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Okay, what's your name? Ismail. Ismail. Ismail, do you go to school? Yeah. Seriously? Okay, so you had a day off today, either you went to school? Yeah. So you went to school today? Yeah. Okay, what did you do in this school? To study. To study. Okay, do you play at your school? Yeah. Okay, what do you play when you go to school? You play games or you play with your friends? Game. Okay, you do games and do you study? Well, you have already told me that you go to school to study. So, who is your favorite teacher? Do you know her name or his name? Okay, is she a male or a female? Can I talk to your brother now? Yeah. Peter, what's your name? Abdullah. Abdullah. Abdullah, in which class do you read? Two. 2. Hasib, can you please just stand straight and you have to look into the camera, right? Okay, beta, in which class do you read? I read in class 2. You read in class 2. Who is your best friend? My best friend is. I kind of know his names, but I forgot. Forgot his name? Do you have so many friends? More than one, more than two? I have more than 2. You have more than 2 friends. Okay, can you just tell me any of your friend? Name of any of your friend? Khalido, I have. And And I have Humaira. Umaira and... And I have my. So you play with your brothers as well? Yeah. Who is your best friend as far as your brothers are concerned? The little one or the middle one? Both are my best brothers. Both are your best friends. Good. What do you play when you are home? I play hide and seek, catch game, And do you play virtual games as well? video games. No. Okay, so kids are more involved into virtual games nowadays. And you've got glasses, your eyesight is weak, right? Yes. So why did it, when did you get to know that your eyesight is, you're losing your eyesight? I know that at South Africa because I couldn't see on what's writing at the board. Oh, so when did it happen? It happened at South Africa. I don't know at the date because I don't write dates at South Africa. Okay, so now you can see and write and do whatever you want to do clearly. Yes. That's good, that's fine. Do you have dreams? Like kids have dreams when they will grow up, what they want to be. What do you want to be? I want to be a doctor Why a doctor? to help people. Because the doctor helps people. But there are so many other people who help people. I like to help people. Right. Okay. What do you want to be? Police. OMG. Police. So why police? Because I want to catch thief. Oh, so you want to catch thieves? Have you ever seen a thief?
Yeah. Where? When did you see a thief? One day. One day. Oh, no, it's too hard to recall that one day. Asif, you have to look into the camera again, okay? अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मरियम। या मरियम, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी हम माशाल्लाह बोर्ड से हैं। आप थोड़ा करीब आ जाएंगे, आप बच्चों के पीछे आ जाएं ताकि आप हमारे फ्रेम में ना अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। अच्छा मरियम, अब मुझे बताइएगा कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं बेसिकली हैं तो पाकिस्तान से हूँ, मैरिड भी यहाँ पे ही हैं। तो उसके बाद हम शिफ्ट हो गए थे साउथ अफ्रीका। कितना ऐसा हुआ आपको साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुए? माशाल्लाह 10 साल। चलो 10 साल, दैट्स नाइस। तो आपके तीनों बच्चे वहीं हुए? हाँ जी। और आजकल कैसे आना हुआ है पाकिस्तान में और लाहौर में? हॉलीडेज थी बच्चों को, तो बस अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे। कितने दिन हुए हैं आपको वैसे आए हुए? मुझे तो हो गए 8 माह हो गए मैं तकरीबन आए हुए, पर मेरे हस्बैंड अभी आए हैं, उन्हें आप लोग वापस चले जाएंगे? हाँ जी। और कितने दिन में वापसी है? अभी ये फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे स्कूल जा रहे थे इन 8 माह में? स्कूल गोइंग नहीं है, लेकिन वहाँ पे स्कूल जाते थे। कंटिन्यू कैसे रखा ना, होता है ना अटैचमेंट आपका रहता है। लाइक ओह दीस वर हॉलीडेज, 8 मंथ्स हॉलीडेज आप लोगों ने लिया ना? जी जी। दैट्स गुड। सो मरियम, हेल्थ फूड होता है ना, मतलब पेरेंट्स अगर आप घर पे हैं, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप एक वर्किंग वुमन है? आर यू वर्किंग वुमन? हाँ जी। क्या करती हैं आप वहाँ पे? कुछ भी नहीं, बस घर पे बच्चों के साथ बिजी होती हूँ मैं, अपनी फैमिली है मेरी वहाँ पे साथ। अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि आप कुछ जॉब कर रही हैं, बिकॉज इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन ऑफ कोर्स यू आर डूइंग समथिंग, बट यू आर कंप्लीट हाउस वाइफ, फाइन। Housewives, Zaire, there are so many responsibilities, taking care of your kids and taking care of your family and house, doing house chores and so many other things. So when it comes to making healthy food for your kids, so what do you want to do? What do you prefer doing? What do you prefer cooking for them? Yeah, if they want to eat, you know, now these kids like pasta, noodles, these things, so I will cook at. Any recipe that you want to share through camera? Everyone knows better. Everybody knows better, of course. Everyone have his own recipe. Indeed, that makes sense. But you have to share something. Either you can sing a song, you can do prose or poetry, or you can share a recipe. Recipes. Okay, beta, listen to me. Any of you. Do you want to share something? Do you want to sing something? Sing a song, either a poetry, a jolly jingle. No. Do you want to share something? No. You want to sing a song, a jolly jingle? No. No? Hasib, do you want to share something? No. No, why? Why? I think you can sing. You can sing better than your brothers. Have you ever sang a song? No. Seriously? So you're becoming a liar. No? No. Do you lie? No. Seriously? So, how is it to lie? Is that a bad thing, either a good thing? Bad thing. It's a bad thing. Very good. And catching thieves, is that a good thing or a bad thing? Good. Catching thieves? Good thing. Oh, it's a good thing. Very nice. Bye. Yeah, अब इतना भी बता दिया ना तो बड़ी बात है. So that's nice. अच्छा मरियम, एक क्वेश्चन है. So because it's a fun part, तो हमेशा हम अपने हर दोस्त से करते हैं. तो I don't think कि हमारे अल्फाज जो हैं वो गेस कर पाएंगे, but somehow let's see कि आप इस बात को समझ पाते हैं या नहीं पाते. उर्दू को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेती हैं ना आप. थोड़े फिर आपसे उर्दू की बात करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए नहीं है. So this is for you. अच्छा, एक जानवर है, उसके नाम का अगर हम पहला हर्फ हटा देते हैं ना, पहला हर्फ, लफ्ज नहीं, सेल्फ लफ्ज तो नाम हुआ ना, तो एक फल का नाम बन जाएगा और वो भी उर्दू में ही बनेगा. जानवर. Abdullah think also. What? I don't know Urdu. So Abdullah, he can hardly. Can you understand Urdu? You can't even understand Urdu. Okay. अच्छा मरियम, कोई हिंट अगर आप लेना चाहें तो I can help you. हाँ मुझे दे सकती हैं. मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ. जो फल है, मतलब आपने देखिए उसके नाम का पहला हर्फ, जानवर के नाम का पहला हर्फ हटा दिया तो एक फल का नाम बन जाएगा. और वो पक्की बात है. हाँ भाई, ये तो पक्की बात है, बिल्कुल ठीक है. मरियम, एक छोटे से गिफ्ट पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू सो वेरी मच किडीज. थैंक यू सो मच. You're welcome. ओह MG, थैंक यू सो मच. You're welcome. बाय. Bye.
हमारा अपने वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि मैं आपके बहुत सारे और अमेजिंग दोस्तों को आपसे मिलवाने के लिए लेकर आ रही हूँ, जिनके साथ मैं करूँगी बहुत सारा अमेजिंग फन। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वहीं पर मौजूद हैं, वहीं खड़े हैं जहां आपको छोड़ा था, क्योंकि हम भी आपसे मिलने के लिए उतने बेताब होते हैं जितना कि आप कमर्शियल ब्रेक को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? सादिया। सादिया। सादिया पूरा नाम बताएंगी? मैं सादिया रज़ाक। सादिया रज़ाक। सादिया क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारे हाउसवाइफ बड़े आराम से कह देती हैं। मैं भी हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये कह देना कि हाउसवाइफ बात ही आपकी वहाँ से शुरू होती है, बिकॉज सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो मेनी थिंग्स टू डू एंड पूरा एक होम मेकर जो है ना वो घर को बना रहा है। अब घर में जो कुछ भी है वो कर रहा है, भले कि वो बाहर के काम है, भले वो घर के काम है। हस्बैंड या अपने स्पीयरहेड की एब्सेंस में यू आर लुकिंग इनटू एवरीथिंग। पढ़ा क्या है सादिया? पढ़ा आपने? मेरी एजुकेशन कम ही है। बताइए तो सही। मैट्रिक है। मैट्रिक है। अच्छा, एक बात है कि हम कहते हैं हम किसी की तालीम का, किसी की भी शख्सियत का अंदाज़ा, जो पैरामीटर्स हैं हमारे, हम मेजर करते हैं कि अच्छा इसके पास ये डिग्रीज़ हैं, उसने ये किया हुआ है और वो तभी तहज़ीब याफ्ता है। हालांकि तहज़ीब और तरबियत का ताल्लुक़ आपकी तालीम से नहीं है, आपके घर से, आपके माशरे से है। मैं एक छोटी सी बात कहूँ। ज़रूर। बाबा कहते थे, वो कहते थे डिग्रियाँ नहीं करती फ़ैसले फ़रासत के, ख़ानदान बताता है कि तरबियत कैसी है। इंडीड इंडीड, दैट व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि आपकी डिग्री नहीं बोलती है, आपकी अपनी शख्सियत, आपकी तरबियत, आपकी तहज़ीब, कि आप किस तरह से ग्रूम हुए हैं, आपने क्या कुछ सीखा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उलूम हैं, बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जो आप किताबों से बाहर देखते हैं। अच्छा, डिग्रियां हैं जो हमारे सिलेबस के लिए हमें तैयार करती हैं, किसी एक स्पेसिफ़िक फील्ड में हमें लेके जाती हैं। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिन्होंने डिग्री नहीं ली है लेकिन उनका ज़िंदगी में मुताला बहुत ज़्यादा है, स्टडी बहुत किया है, पढ़ा बहुत है, सीखा बहुत है। हाँ, ज़िंदगी और थ्रू मतलब लाइब्रेरी भी, अखबार पढ़ने का उनको बहुत शौक़ होता है, अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपने आप को अपग्रेडेड रखते हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा रहा, या आपने थ्रू एक्सपीरियंसेस, या जिसे कहते हैं ना कि अपनी आँखों से देखा, तजुर्बात से सीखा? मैंने अपनी आँखों से देखा, मतलब यही कि ज़िंदगी से, रोज़ के तजुर्बात से। और मैं ज़्यादा खुश होती हूँ अपने घर में, कुकिंग में, स्टिचिंग में। मैं बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हूँ, बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। मैं चीज़ों में बहुत खुश रहती हूँ। वेरी नाइस, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड है, करें वही जो आपकी ज़ात को खुशी दे रहा है, आपको खुशी दे रहा है। अगर वो चीज़ जो आप कर रहे हैं आपको खुशी नहीं दे रही है, आपके जीने का मकसद नहीं है ना। हर इंसान के जीने का कोई ना कोई मिशन होता है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, सादिया आपका क्या मिशन है? क्या आगे क्या करना है? मेरा मिशन बच्चे पाल रही हूँ, बस उनको। माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं। 3 बच्चे हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक़ है आपका? बाहर से? नहीं, पाकिस्तान से, लाहौर से जी। और माशाल्लाह मेरे दोनों बड़े बच्चों ने 2nd ईयर कंप्लीट कर लिया है और छोटी बेटी जो है वो 1st ईयर में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने बच्चों के लिए क्या सोच के रखा है कि आपके बच्चे पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? जो हालात हो गए हैं ना हमारे पाकिस्तान के, पहले तो मेरी ऐसी सोच नहीं थी, लेकिन अब जो हालात हो चुके हैं इसको देखते हुए तो मैं यहीं अब सोच रही हूँ कि उनको बाहर ही, बच्चे बाहर चले? हाँ जी, बाहर चले, पाकिस्तान में ना पढ़े? नहीं, रहें भी ना? नहीं, रहें भी ना, बस आए। आपका अपना क्या प्लान है, आपका, आपके हस्बैंड का? अपना तो फिलहाल यहीं का ही है कि हम लोग यहीं पे रहें? हाँ, यहीं पे रहें। लेट्स सी कि क्या फ्यूचर ने रखा है आपके लिए, कहाँ ज़िंदगी लेकर जाती है। लेकिन इंसान खुद से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को वक्त की लहरों में छोड़ देते हैं तो फिर वक्त तो आपको कहीं भी बहा कर ले जाएगा। आपने सिमत खुद देनी है, डायरेक्शंस आपने तय करनी है, और फिर आगे का जो हाल है वो अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दिया जाता है। पहले भी अल्लाह की ज़ात पर ही होता है, क्योंकि संभालना करना सब उसने, जो बेहतर उसने सोच के रखा है, कहता भी वही है, वही ज़ात कहती है कि मेहनत करो, और जो चाहेगा बंदा, और जिसमें वो मेहनत करके अपनी पूरी लगन दिखाएगा, उसमें अल्लाह ताला भी अपनी मदद को शामिल कर देता है। सादिया, कुकिंग आप करती हैं, कोई ऐसी रेसिपी जो आप शेयर करना चाहें थ्रू कैमरा? मुझे बहुत सी आती हैं, अब मैं कौन सी करना चाहूँ? कोई एक किसी पर पहुंचना होगा बड़ी जल्दी से, कोई बड़ी क्विक सी कोई रेसिपी है, मेहमान घर में आ गए हैं, फटाफट कुछ भी मज़ेदार सा बनाना है। आजकल क्या बना रही हैं? फिर तो अगर मेहमान आ गए और जल्दी जल्दी जो 15 से 20 मिनट में बन जाए तो वो तो फिर चिकन कढ़ाई है।
चिकन कढ़ाई, हाँ वैसे एक बात है कि जहाँ अपने स्नैक्स बनाने हैं तो वाई नॉट वहाँ पे जाती है, प्रॉपर मील बना ले, है। बन जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रायलर बड़ी जल्दी गल जाता है, पक जाता है। देसी गोश्त को थोड़ा गलाने पकाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं, उसको भी अगर हम प्रेशर लगा दें तो मेरा ख्याल है वो भी 20 से 25 मिनट में हाँ, खवातीन प्रेशर कुकर में अगर बनाती हैं तो वो भी बड़ा जल्दी बन जाता है, वो भी एक सब्स्टिट्यूट है। करता है आप पे कि आप किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो सब्ज़ी बनाने में ही 2 घंटे लगा देती हैं, जबकि वही सब्ज़ी आप 20 मिनट में बना सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है, चीज़ों पे नहीं। हाँ, ये भी है कि आप कितने क्विक हैं। अच्छा, कैसे बनाती हैं चिकन कढ़ाई? मैं चिकन कढ़ाई मैं इस तरह बनाती हूँ कि उसमें दही में सारे मसाले वगैरह जो घर के मसाले होते हैं, डब्बे वाले मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ। उनको मैंने वो ग्राइंड करना है, दही में डालना है और चिकन के अंदर वो करके उसको 10 मिनट रख देना है। फिर प्याज वगैरह, फिर वो प्याज अदरक लहसुन, फिर वो दूसरी जगह पे वो भी मसाला दोबारा मैंने बनाना है। ठीक है। उसको हल्का सा मैंने, ये सभी घर के मसाले हैं? हाँ, ताज़े मसाले या पीस लिया या सूखा हुआ जो भी है। हाँ जी, उसको फिर थोड़ा सा वो ऑयल में उसको मैंने रोस्ट करना है और वही चिकन जो दही में मैंने मैरिनेट किया हुआ था उसमें डालना है, उसको थोड़ी देर पकाना है। 10 मिनट अगर आपने उसको बस 10 से 5 मिनट, उसके बाद 10 मिनट आपने दम पे रख देना है। फिर अगले 5 से 7 मिनट में उसको भून लें, तैयार है। हाँ, ये भी है। अच्छा, मैं भी इस चीज़ के हक में हूँ कि जहाँ अपने स्नैक्स बनाने हैं ना, वहाँ पूरा एक मील सर्व कर दें। एक तो ये कि मेहमान भी खुश होता है, और जो एफर्ट आपने स्नैक्स बनाने पे और इतना कुछ करने पे वही आपकी मील बनाने पर लग जाती है। आई थिंक इट्स बेटर। अच्छा सादिया, फन पार्ट क्या है? थोड़ा सा फन करेंगे आपके साथ, जैसे कि आप हमारे फन को समझ पाती हैं कि नहीं? चलें, गुड। वैसे आई होप कि सादिया समझ पाएंगी, लेकिन हम टेस्ट तो करेंगे ज़रूर। अच्छा सादिया, खाने पीने की बातें हो रही हैं, फलों की सब्जियों की बातें हो रही हैं, तो चले मुझे ये बताइए कि एक ऐसा फ्रूट है, किसी ज़माने में कहते थे कि हाँ ये तो गोरों का फ्रूट है, खैर अब तो हमारे यहाँ भी बड़े आसानी से और हर जगह मिल जाता है। उस फ्रूट के जो बीज है ना, वो उसके पील पे होते हैं, उसके अंदर नहीं होते हैं। वो ड्रैगन फ्रूट है, आई थिंक, शायद ऐसा कोई नाम है। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं जिस फ्रूट के बारे में बात करी है, इट्स अवेलेबल बट नॉट फॉर एवरीबडी। ड्रैगन फ्रूट इट्स अनदर फ्रूट जो अपने सीज़न में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है और हर कोई उसको ख़रीद सकता है, खा सकता है, भले कि कोई भी तब किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, अमीर या गरीब है, दरमियाना है। उसके बीज ऊपर होते हैं, उसके बीज बाहर होते हैं। मुझे तो शेक्स भी बनते हैं, ड्रिंक्स भी बनते हैं, आइसक्रीम्स भी, ईच एंड एवरीथिंग हर जगह इस्तेमाल होता है। बनते हैं। स्ट्रॉबेरी, यस इट इज। और आपकी जाने से सादिया, हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए थैंक यू सो मच सादिया। प्रोग्राम में एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, इस वक्फे के बाद हम आपको मिलवा रहे हैं आपके बहुत सारे दोस्तों से, तो हमारे साथ रहिएगा। एबादे सबा कुछ सुना तूने, मेहमान जो आने वाले हैं। एबादे सबा कुछ सुना तूने, मेहमान जो आने वाले हैं। तुम राहों में कलियां ना बिछाना, हम पलकें झुकाने वाले हैं। वेलकम बैक। आइए जनाब, आपके दोस्त खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजीमा अकबर। डॉक्टर अजीम अकबर। अजीमा अकबर। अजीमा, अच्छा अजीमा मैंने पहली बार नाम सुना है। नाम मतलब तो मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि इट्स बड़ा अंडरस्टूड है, बड़ा क्लियर है कि अच्छा अजीम से अजीमा है तो बड़ी चीज़। जो अजीमा, ज़िंदगी कैसी गुजरी, यहाँ तक कैसे पहुँचे? बहुत अच्छी, बहुत बिजी और बहुत एडवेंचरस। सच में? अच्छा, क्या क्या एडवेंचर किया ज़िंदगी में? बहुत कुछ, माउंटेन क्लाइंबिंग की हुई है और नांगा पर्वत देखी हुई है। हाँ, काफ़ी मुल्कों का टूर्स किया। वेजिटेरियस तो नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या स्टार है आपका? जेमिनाई। अच्छा, जेमिनाई, गुड है। अच्छा, ये अपने इंटरेस्ट से किया ट्रैवलिंग या कुछ सपोर्ट ऐसा मिल गया, सपोर्ट सिस्टम ऐसा था कि हाँ ट्रैवल करने के लिए कंपनी थी तो हाँ ट्रैवल कर लिया? कंपनी भी थी और शौक भी था, और अभी भी है? अभी है, लेकिन ड्यू टू हेक्टिक रूटीन बिल्कुल मैनेज नहीं होता। इट्स बीन मैनी ईयर्स कि मैं तो शहर से ही नहीं निकली। ओके, हाँ होता है, कभी आप इतना फंस जाते हैं अपनी डे टू डे रूटीन में कि आप नहीं निकल पाते, आप वो सब कुछ नहीं कर पाते जो आप बहुत पहले से कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब आगे क्या करना है? यूर अ डॉक्टर। आगे फ़िलहाल तो एक ट्रांसफ़र करवानी है अपनी। डॉक्टर साहब और अपना ट्रांसफ़र का, अच्छा क्यों, चक्कर क्या है, क्यों ऐसे ट्रांसफ़र की क्यों टेंशन पड़ी हुई है? टीचिंग हॉस्पिटल में बहुत ट्रैफिक होती है और वो उसकी ट्रैफिक से बस हो गई है ट्रैवल कर करके डेली। सो बस अब यही है कि किसी बड़े अस्पताल के साथ आ जाएं।
अच्छा, आप ये से कितने अर्से से आप काम कर रही हैं वहाँ पे? मैडम मुझे 6 साल हो गए हैं गवर्नमेंट के साथ काम करते हुए। बात है कि 6 साल से आप बड़ा स्टेमिना है कि आप किए जा रही हैं। धरना था और इतने सारे कंटेनर्स थे, मैं फिर भी ड्यूटी पे गई थी और मैं गई भी रिक्शे पे थी, लेकिन मैं गई थी, मैं गाड़ी रास्ते में छोड़ गई थी। वेल बड़ी बात है। अच्छा, कैसे सिक्योर कैसे किया आपने गाड़ी को? मतलब कि कैसे, कोई लोकल वोकल थी, कोई सुपरविजन था? हॉस्पिटल की पार्किंग में गाड़ी ड्रॉप करके यादगार से रिक्शा लेके बाकी लोगों की तरह मैं भी चली गई। बहुत मुश्किल, लेकिन खैर थम्स अप कि हमारी ख़वातीन पढ़ भी रही हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी शॉपिंग के लिए आई हुई, इनके पास मैंने बैग्स भी देखे हैं, वो भी इनसे बात करेंगे कि ये इन्होंने मार्केट में क्या किया और जो हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल है। बात तो हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारा शो सियासी नहीं, लेकिन इस चीज़ की वजह से कि आप आपस के झगड़े, आपस के फसाद, अपने मोटिव्स के लिए हर किसी को जिज करना, आवाम को परेशान करना, न जाने इन दिनों में कौन कौन इमरजेंसी के लिए शहर से बाहर जाना चाहता होगा, किस किस को अपने पेरेंट्स को देखना होगा, किस किस मरीज़ को देखना होगा, चेक करना होगा। कामों पे जाना है, उन्होंने तो जाना ही जाना है ना। Indeed. कंटेनर्स के नीचे से भी बाइक्स निकाल के जा रहे हैं, पैदल जाने वाले पैदल जा रहे हैं, तो टू मच। ऐसी चीज़ों को निगेट करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, हिदायत दे अल्लाह पाक ऐसे लोगों को जो हमारे मुल्क में इस किस्म की नफ्सा नफसी या इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन के लोगों के लिए शदीद किस्म की परेशानी का बायस बनता है। बेशक जी। अच्छा अजीमा क्या करती हैं इसके अलावा? चलिए, तो बड़ी परेशानी वाली हमने बात शेयर कर दी ना, छेड़ दी। दुखती रख पे हमने हाथ रख दिया बहुत सारे लोगों के। हम कहते हैं थोड़े प्यार मोहब्बत वाली बातें भी कर लें। क्या क्या करती हैं? क्या क्या कुछ करना पसंद है? कलरिंग करती हैं, कुकिंग करती हैं? बर्तन धोना हॉबी है मेरी। अरे भाई ना करे प्लीज़, किसी ने ज़बरदस्ती, सच में घर के सारे काम करती बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। करने भी चाहिए आपको, क्योंकि आपको अपने घर के इन काम, जब घर आपका है ना तो फिर आपके घर के काम भी आपके हैं। बाहर जाके तो यही काम आप बड़े जैसे फ़ख्र से कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मुल्क में आप बताते हुए भी शर्म खा रहे होते हैं। ऐसा ना करें, करते सभी हैं, बताता कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं हो गया। आज़िमा क्या शेयर करेंगी थ्रू कैमरा? कोई शायरी, गाना, रेसिपी? नथिंग, मैं बस यही कहूँगी कि मुल्क के नहीं, अब वो हो गया। नहीं, वो हो गया। या शायरी या गाना या फिर रेसिपी? शायरी ठीक है। शायरी ठीक है, शायरी चलेगी। ए बादे सबा कुछ सुना तूने, मेहमान जो आने वाले हैं। ए बादे सबा कुछ सुना तूने, मेहमान जो आने वाले हैं। तुम राहों में कलियां ना बिछाना, हम पलकें झुकाने वाले हैं। ओए होए, ये मेहमान कौन है? बस है ना, स्पेशल। समझ स्पेशल। क्या बात है अजीमा। अच्छा अजीमा, एक सवाल है, फन पार्ट है। लेट्स सी आप हमारे फन पार्ट को समझ पाती हैं या नहीं समझ पाती हैं। बात करते हैं आपसे फ़न के हवाले से, तो और से सुनिए ताकि आप गिफ्ट हैम्पर लेके जा सकें। तो चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही दे दें? जी जी, आई एम रेडी। ओके फाइन। सो अच्छा, 50 रुपए का नोट देखा कभी गौर से? हाँ जी, आज ही देखा है। आज, इससे पहले कभी नहीं देखा? मतलब आज देखा है रिक्शे वाले को देते हुए देखा। अच्छा, रिक्शे वाले को देते हुए देखा था। अच्छा, उसे कभी गौर से देखा है? कायद-ए-आज़म की तस्वीर होती है। नहीं, वो तो और भी नोट पे, तो 100 के नोट पे भी है, कलर तो होता है, पर्पल कलर होता है, वो भी है, वो भी सबको पता है। एक और चीज़ भी है, स्टेट बैंक लिखा होता है, वो भी सारे नोटों पर होता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो इस नोट पर होती है। एक पहाड़ है जिसकी तस्वीर है। पहाड़ का नाम बता सकती हैं? K2 पाकिस्तान के अंदर है। हमारी चोटी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट तो नहीं, वो तो नेपाल वो की तो नहीं। पहाड़ है। किस प्रोविंस के से रिलेटेड है? KPK के देखिए, है। जाहिर है कि जितने भी पहाड़ हैं वो सब माउंटेन रेंजेस में ही हैं। अच्छा, 3 माउंटेन रेंजेस हैं, उन तीनों के नाम बता सकती हैं? नांगा पर्वत है, K2 है। नांगा पर्वत तो चोटी का नाम है जो 50 के नोट के ऊपर बनी हुई है। हमारे अपनी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाता रहेगा हमारी मुलाकात को। थैंक यू। क्या नाम है आपका? समरा। समरा पूरा नाम क्या है? एडवोकेट समरा अकरम। एडवोकेट समरा अकरम। अच्छा, एडवोकेट भी नाम का हिस्सा है? यस, अब हो गया। अब हो गया। पैदा हुई थी तब नहीं था? नहीं था, पहले नहीं तो पैदा होने वाला नाम पूछा ना। हलाल भी करने से पहले भी नहीं था, लेकिन अब है। अच्छा, अब है। अब है। अच्छा, क्यों एक एडवोकेट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? एक तो मेरी अपनी ख्वाहिश थी, जैसे मेरे अब्बा चाहते थे, क्योंकि मेरा भाई। अब्बा क्या जुडिशरी में है? नहीं, मेरा अब्बा जुडिशरी में नहीं है, वो एक मतलब एक प्रॉपर्टी डीलर है। बिल्कुल, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी एक एडवोकेट बने। क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक मैं ही थी और मुझे ही अपना बेटा समझते थे, तो उन्हें एक बेटी? हाँ, एक ही।
और बहन भी नहीं है? नहीं, बहन भाई तो ये क्या बात हुई है? क्या किया आपने ऐसा, क्या और बहन भाई नहीं आए हैं? बस आने नहीं दिए। क्या बात है समरा, समरा ने पूरा कह रही प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा चाहिए था, पूरी चाहिए थी। और फिर एडवोकेट बन गए तो फिर वो ज़्यादा ज़रा हो गया ना कि अब तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए ना। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, जिंदगी ने क्या सिखाया है, अपने एक्सपीरियंस ने क्या सिखाया, अपनी तालीम ने क्या सिखाया, वालिदैन ने क्या सिखाया? वालिदैन ने तो ज़िंदगी जीना सिखाया, तालीम ने उसको मज़ीद अच्छा करना सिखाया, ठीक है। और हस्बैंड ने उसको उस ज़िंदगी को खुशी से जीना सिखाया। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, आपके हस्बैंड भी एडवोकेट है? नहीं, वो एडवोकेट नहीं है, वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। एडवोकेट अगर दोनों होते तो फिर घर कैसे चलना था, एक का बिजनेसमैन होना ज़रूरी था। ठीक है, बिजनेसमैन होना ज़रूरी था, लेकिन हम बहुत से ऐसे लोग भी होंगे, बहुत सारे कपल्स भी हैं जो एडवोकेट हैं और वो काम भी कर रहे हैं और अपने ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी भी जी रहे हैं। ज़िंदगी तो जीनी है, लेकिन आपके यहाँ एक्सपीरियंस इस तरह से वो आप समझती हैं कि एक अच्छा इंसान या अच्छे तरीके से एक इंसान घर को तभी चला सकता है जब वो कमाता अच्छा है। कमाता अच्छा है, मतलब वकील नहीं अच्छे कमाते? अच्छा कमाते हैं, लेकिन वो एक हवाई रोजी टाइप होती है ना। लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना सही। तो ना सही। अच्छा, जब लग गई तो फिर मौजा ही मौजा। तो मौजे हैं और ना फिर तो मौजा है। हाँ, फिर तो जनाब फिर तो दुखेगा। अच्छा चले, समरा, एनीथिंग दैट यू वांट टू शो थ्रू कैमरा? कोई शायरी, कोई गाना? शायरी, मोहब्बत का अजीब दस्तूर है, तू मुझसे दूर मैं तुझसे दूर। दूर ही कर दिया। ये भी अच्छा है। अच्छा समरा, फन पार्ट है, लेट्स सी हमारे फन को समझ पाती हैं कि हम चाहते हैं हमारी मुलाकात को यादगार बनाए गिफ्ट हैम्पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखते हैं जनाब वकीलों का दिमाग कितना तेज चलता है, लेकिन दिमाग वकीलों का नहीं चलेगा तो किसका चलेगा? वकीलों से बात भी हम ऐसी करेंगे दिमाग वाली। एक परिंदा है जिसका दिमाग उसकी आँख से छोटा है। वो जिसको रात को नजर नहीं आता, उल्लू? नहीं, फिर कौन हो सकता है? उसको तो रात को नजर आता है, जैसे वो अपनी आवाज़ से ट्रेवल करता है। कौवा? नहीं। अच्छा, वैसे एक परिंदा है, कौवे के बारे में भी कोई मशहूर बात है, कुछ जानती हैं आप? कौवे के बारे में बता दें। नहीं। अच्छा, ग्रज रखती हैं दिल में आप किसी के लिए? किसी ने बुरा किया है तो नहीं? आपको पता है कौवा 17 साल 20 साल भी अगर जिए तो वो ग्रज रखता है। मैं नहीं रखती। कौवे को नहीं छेड़ना आपने? भेड़िए पसंद है वैसे। भेड़िए पसंद है, लेकिन अभी तो आपने बताना है कि कैसा। यस, ऑस्ट्रिच। उसे उर्दू में क्या कहते हैं? नहीं, आपको नहीं पता सच में? हमारा की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर है हमारी मुलाकात को यादगार बनाने। थैंक यू सर। माशाल्लाह। प्रोग्राम में हम लेंगे एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा और इस वक्फे के बाद हम आपको मिलवाएंगे आपके बहुत सारे और नए दोस्तों से जो इस ब्रेक के भी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं और आपसे बातें करेंगे। हमारे साथ रहेगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। वेलकम बैक जनाब, हम और आप आपको आपके दोस्तों के पास लेकर जा रहा है। हमने अपने कैमरे को फिक्स करना है और उनसे बातें शुरू करनी है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतशाम। इतना सोच के क्यों जवाब दिया आपने? अपना नाम भूल गए थे? नहीं, सोच के जवाब दिया। आपने भी कुछ सोच के पूछा एकदम से। उधर देख के आपने बात करनी है। क्या करते हैं आप? मैं मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। मार्केटिंग ऑफिसर हैं। अच्छा एहतशाम, पढ़ा क्या है आपने? मैंने FSC करी हुई है। मैं मेडिकल, स्टैट इकोनॉमिक्स यानी कि बिजनेस, स्टैट इकोनॉमिक्स, मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स। FAC बना या FA बना? माशियात यानी कि FSC। फिर तो FA बना। FSC यानी कि जनरल साइंस ग्रुप। ओके फाइन, सही है। आगे परसू किया, छोड़ दिया? नहीं, आगे मैं असल में कंटिन्यू किया था, लेकिन मैं जॉब्स में काम में आ गए? में आ गया था। फिर उसके बाद काम में कैसे आए आप? काम में कुछ घर के मामला थे, इस वजह से मैं फिर काम में आ गया। उसके बाद फिर करते करते मैंने कहा कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, साथ में अपना कंटिन्यू करूँगा स्टडी को, लेकिन वो टाइम नहीं मिल सका। फिर उसके बाद फिर उसको ख़त्म कर दिया। अब बिज़नेस में आ गया हूँ, पहले जॉब करता था। अब बिजनेस ही चल रहा है? हाँ, बिज़नेस ही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना भी। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा लाहौर से है। हमेशा से? हाँ जी, हमेशा से। क्या देखा है लाहौर में? लाहौर तो बताएं ना ज़रा। अब अगर किसी दोस्त से तो हम पूछे ना, मतलब हम लाहौर के लिए शो कर रहे हैं, लाहौर वालों के लिए शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाहौर में रहते हुए भी लाहौर के बारे में नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ओवरसीज़ हैं, हमारे शो को देखते हैं, बहुत प्यार से
चाहत से, मोहब्बत से और जानना चाहते हैं लाहौर के बारे में, लाहौर वालों के बारे में। लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर है। और कैसे अब ये डिफाइन करना पड़ेगा। फाइन इस तरह है कि यहाँ के लोग एक तो खाने पीने के शौकीन होते हैं और दूसरा ये और कहीं के भी लोग खाने पीने के शौकीन नहीं हैं। नहीं, और भी हैं लेकिन लाहौर इस हवाले से मशहूर है। ओके, और खाने पीने के लिहाज से और वैसे भी यानी कि सैर व तफरी के लिहाज से भी लाहौर बहुत मशहूर है। मशहूर है। हाँ, यानी कि मतलब लाहौर में अपने कितने स्पॉट्स हैं जहाँ आप घूम फिर सकते हैं, जहाँ आप जा सकते हैं। लाहौर ट्रैवल गाइड्स भी हैं जो आपको पूरा लाहौर दिखा सकते हैं। जी, मैंने लाहौर में तो ये काफ़ी जगहें हैं, जैसे कैसे रेस कोर्स पार्क हो गया, बिल्कुल। डांस गार्डन हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, मीनार पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा ये इधर चले जाएँ ये अभी भी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं यानी कि मॉल्स के अलावा जहाँ पर आप जा सकते हैं, ख़ुद जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, उनमें से 3-4 जगहें तो इन्होंने बताई हैं। और भी अगर इसके अलावा आप जानते हैं तो बताइए। उसके अलावा फिर बोटेनिकल तारीखी मकामात इतने जहाँ बोटेनिकल पार्क है, ज़रूर दे जाइए, देखिए भाई वहाँ पे आप देखिए तो सही कि किस तरीके से उन्होंने माहिर नबातात ने किस किस तरह के वहाँ पर पौधे उगाए हैं, किस तरह के वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, किस तरीके से पौधों की केयर की जाती है, और भी पता नहीं क्या क्या कुछ जो आपको वहाँ जाकर मालूम होगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, ऑल टुगेदर फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। अच्छा, से होके आ रहा हूँ, लॉरेंस गार्डन से होकर आ रहे हैं, बेहतरीन है, क्या बात है। आपको घूमने फिरने का शौक है। अच्छा, अब फिर वहाँ से आए तो फिर उसके बाद फिर लिबर्टी मार्केट हाँ ये वैसे ही विजिट कर रहा था मैं, विजिट कर रहे थे, कुछ शॉपिंग करनी थी या बस वैसे ही घूमना फिर? ऐसे ही घूमना ही था। फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपको सारे चलने फिरने के लिए खुली और साफ़ सुथरी जगह मिल जाती है, माहौल भी अच्छा होता है, फैमिली ओरिएंटेड किस्म का माहौल है, लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए होते हैं, और आपको वॉकिंग जो एक मिल जाए, ईज़ है यहाँ पर कि आपको इधर उधर कुछ टकरा नहीं रहा, रास्ता खुला मिल जाता है, और खाने पीने का दिल चाहे तो यू कैन हैव फूड एज वेल। क्या शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा? मैं आपको एक शेर सुनाना शेयर सुनाइए। शेर यही है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर को ही तोड़ दे वो शीशा तलाश कर। पत्थर को ही तोड़ दे वो शीशा तलाश कर। अच्छा, वैसे पत्थर तो शीशे को तोड़ देता है। हाँ जी, जो शीशे को तोड़ दे वो पत्थर, यानी कि वो शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे, यानी कि वो शीशा भी कितना हैवी होगा जो पत्थर को तोड़ देगा। अगर शीशा पत्थर को तोड़ दे इंसान को, वाकई में ब्यूटीफुल मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज आता है। एहतशाम, फ़न पार्ट है, लेट्स सी आप हमारे फ़न पार्ट को समझ पाते हैं या नहीं, तो कोशिश कीजिएगा। लेट्स सी आपके हिस्से में क्या आया, मुझे बताएंगे। आपके एक ऐसा परिंदा है कि उसका जो दिमाग है ना वो उसकी आँख से भी छोटा होता है। एक परिंदा है, उसका दिमाग परिंदा है वो, जानवर नहीं कहेंगे, बड़ा है, बिग बर्ड है। बिग बर्ड क्या हो सकता है? परिंदा है, उसका जो दिमाग है उसकी आँख से भी छोटा है। छोटा है। चिड़िया तो नहीं है? बिग बर्ड, स्पैरो या चिड़िया तो बहुत छोटा सा परिंदा है। बड़ा परिंदा है, सबसे बड़ा परिंदा। सबसे बड़ा परिंदा। कोई हिंट वगैरह कोई है? मैं तो आपको बिल्कुल जवाब बता रही हूँ, मैं इससे बड़ा तो मैं आपको जवाब नहीं बता सकती। बिग बर्ड में थैंक यू सो बात आ मच। जाता है। हमारे जाने का वक्त हो गया शटर डाउन से पहले हमने आपको बताना है, ताकि आप लाइट्स को भी तो कैप्चर कर सकें आपके लिए। रंगीन सा माहौल और रंगीन सी जो स्क्रीन है वो सभी को भा जाती है और लुभाती है। तो जनाब वो फ़न जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो क्या था, सुनते जाइए। वो कौन सा जानवर है जिसके नाम का पहला हर्फ अगर हम हटाकर अलिफ लगा दें तो एक फल का नाम बन जाता है, और उस जानवर का नाम है लंगूर। अब अलिफ लगाएंगे तो अंगूर बन जाएगा। एक और सवाल, वो कौन सा फल है जिसके बीज उसके छिलकों में होते हैं, यानी कि उसकी स्किन पे होते हैं, और वो स्ट्रॉबेरी है। एक और सवाल, पाकिस्तानी 50 रुपए के नोट के ऊपर एक चोटी है, एक पहाड़ है जिसकी तस्वीर बनी होती है, वो क्या है? नांगा पर्वत। एक और सवाल कि वो कौन सा जानवर है जिसका दिमाग उसकी आँख से भी छोटा होता है। और एक ऐसा जानवर जिसका दिमाग उसकी आँख से भी छोटा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। अब वो जानवर नहीं है, वो परिंदा है। बहुत सारे दोस्तों को हमने हेल्प भी किया और उनको
समझाने के लिए हमने ये भी कहा कि इट्स अ बिग बर्ड, एक बड़ा परिंदा कौन सा परिंदा हो सकता है, और ये परिंदा है शुतुरमुर्ग। आई एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्तों को हमारे ये सारे के सारे फन से भरपूर सवाल भी बड़े पसंद आए। आज हमने भी बहुत कुछ सीखा, आपने भी बहुत कुछ सीखा। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रूर सर्च बार में टाइप करते हैं और सिर्फ 42 जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें बताएंगे वो है टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक। समहाउ आप ज़रूर जाइए, हमसे बात कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए हमेशा बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी कही हुई बातों पर हम हमेशा से अमल भी करते हैं। यही तो हेल्दी क्रिटिक्स है, हमें भी तो सीखने का मौका मिलता है और हमें भी इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। अभी के लिए ज़ोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आऊँगी आपके बहुत सारे दोस्तों को आपके पास। हम और आपसे इसी तरह से मोहब्बत करता है और आपको हमेशा अपनी दुआओं में, अपने प्यार में शामिल रखता है। आप भी हमें अपनी दुआओं में, प्यार में हमेशा शामिल रखिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।